Hello, dear learners. Hope you are doing well. As you all know, we have taken a very long break from the studies, but now, as the UGC NET exam is approaching, so here is the master plan to crack the exam. Yes, we will be going to solve the papers which were remained last time, like from 2010 till 2018. We will be completing this in the going month, which will be from May 1 to May 31st. We will try to complete as much previous year papers as possible, and very soon we will also start the revision series. So without wasting much of your time, here is the paper 2 of history from June 2010. The paper was for 100 marks, 50 questions, and paper is very easy, but do remember one thing, the questions were repeated. Yes, you will find questions or something related to the questions in the 23-22 paper also. When I was making the video, when I was making the answers, that time I have found this, that questions do repeat. So बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी अगर आपने ये वीडियोस भी किए. So first question, which of the following is associated with the lower Paleolithic period? तो इसमें क्या बताया गया है, ये सारे होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियन, ये हमारे एंसेस्टर्स है. ओके, सो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में कौन थे? दे वर होमो इरेक्टस. लोअर पेलियोलिथिक पीरियड किस टाइम से किस टाइम तक था? कमेंट्स में बताइए. वी विल मेक अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन टू कमेंट्स योर डाउट्स, योर क्यूरीज एंड एवरीथिंग, एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेसोलिथिक पीरियड? मेसोलिथिक पीरियड किस टाइप के टूल से रिप्रेजेंट होता है? ओल्डुवन टूल्स, हैंड एक्स, ट्राइंगल टूल्स, पॉलिश टूल्स. सो दे वर द ट्राइंगल टूल्स. मेसोलिथिक पीरियड में ट्राइंगल टूल्स वे प्रेजेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द नियोलिथिक पीरियड? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. ओके, सो यहाँ पर प्लेस दी गई है. अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से. सी, पहले ह्यूमन से रिलेटेड, देन टूल से रिलेटेड, नाउ प्लेस से रिलेटेड. सो द प्लेस इज ऑप्शन डी, चिरांड. We have seen so many times this specific Neolithic site. Yes, in the previous videos you can see the reference. Question number 4, given below are the two statements, assertion and reasoning. Harappa civilization was developed with the application of copper tools. This enabled people to make better use of the available natural resources. Okay, Harappan civilization, which is Chalcolithic. Okay, copper tools उस टाइम पर थे, right? सो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉपर टूल्स थे और उसी से लोगों का जो बेटर लाइफ हो चुका था. वी हैव द ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minute. Given below are two statements, again assertion, reasoning. During the Vedic period, the society was pastoral. The mode of subsistence was primarily based on pastoralism. Okay, सोसाइटी क्या थी? पेस्टोरल. और उनका लाइक पशुपालन वगैरह वो करते थे, एंड वही उनका मोड ऑफ इनकम भी था, सब्सिडेंस भी था. ओके, बोथ ए एंड आर करेक्ट. Next question, given below are the two statements. One is labeled as assertion, other reason. So the rise of religious movements in the 6th century BC was an outcome of prevalent social and economic unrest. The improved condition of the deprived section of society emboldened them to seek their rightful place. लोगों को समझ में आने लग गया था कि they were very डिप्राइव्ड, उनके राइट्स डिप्राइव्ड है, सोशल और इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड है. तो ये एक अनरेस्ट लाता है, एंड इसी के बाद में एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होता है. ओके, बोथ ए एंड आर करेक्ट. Next question, question number 7, given below are the two statements. Okay, Kushan period witnessed large scale cultural integration. Kushan kings advocated themselves it by example. So Kushan के टाइम पर cultural integration काफ़ी ज़्यादा हुआ था. Yes, they were very much mingled with the Indian culture, and this were the kings were the example of that. So both A and R are true. D is the correct answer. Next question. Now we have to arrange the following into sequence. Right? ठीक है. मेगालिथिक, चालकोलिथिक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर. सो सबसे पहले क्या आएगा? चालकोलिथिक. उसके बाद में आता है ब्लैक एंड रेड वेयर, एंड देन मेगालिथिक, और लास्ट में आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ओके, 3 ऑप्शन लास्ट किस में है? ऑप्शन बी. फर्स्ट चालकोलिथिक, देन ब्लैक एंड रेड वेयर, देन मेगालिथिक, एंड देन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. अगेन अरेंज करना है, जनपद, महाजनपद, एम्पायर एंड जना. वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहले जना आता है, सबसे छोटा, और जो एम्पायर होता है वो सबसे बड़ा होता है. सी, 2 ऑप्शन में 4 फर्स्ट है और 3 लास्ट है, सिर्फ बीच में का डिफरेंस है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, जना, जनपद, महाजनपद एंड एम्पायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर्स. सो मालविका, अग्निमित्र, हरिश्चरिता, अष्टदायी, राजतरंगिणी. सो हमने
प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस किए थे 23 और के, उसमें हमने इनके ऑथर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। स्टिल हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। मालविका अग्निमित्रा कब आती है? 182 BC। 182 BC। हर्षचरिता 7th सेंचुरी के अप्रॉक्स में आती है, 7th सेंचुरी AD। ओके। अष्टध्यायी 5th सेंचुरी, बट इट इज़ BC। एंड देन रजत तरंगिणी ये 12th-13th सेंचुरी के अराउंड आती है। कल्हान। सो अब करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले आते हैं अष्टध्यायी। ऑप्शन 3 किस में फर्स्ट है? 2 ऑप्शन में फर्स्ट है। अष्टध्यायी के बाद में आते हैं मालविका अग्निमित्र। ओके, ऑप्शन 1 मालविका अग्निमित्र। उसके बाद में हर्षचरित्रा। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन्हें अरेंज करना है। ये किंग्स है। पुलकेशिन 2, पुष्यमित्र शुंगा, शंकराचार्य, चंद्र बारादाई। सो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंगा आएगी, शुंगा डायनेस्टी। देन शंकराचार्य। ओके, देन शंकराचार्य। उसके बाद में आते हैं 1 मिनट। हाँ, सो आवर करेक्ट सीक्वेंस इज दिस, ऑप्शन 1। शंकराचार्य भी और 13th सेंचुरी 13th-14th सेंचुरी के अराउंड है। एंड चंद्रा बरादाई भी उसी के टाइम पे है। पुलकेशिन कब आते हैं? 10th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। द डेट्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग, वेरी कन्फ्यूजिंग। हिस्ट्री में डेट्स अगर किसी को याद रह गए तो द पर्सन इज ऑलरेडी JRF होल्डर। नेक्स्ट, लेविरेट, पंचमार्क कॉइन्स, वर्मनाज, नालंदा। हमें मैच द पेयर करना है। लेविरेट इट इज़ अ टाइप ऑफ पूजा जो ऋग्वेदा में प्रेजेंट है। देन पंचमार्क कॉइन्स अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। वर्मनाज किस में दिया हुआ है? कामरूप। एंड नालंदा कहाँ प्रेजेंट है? बिहार में। ओके, डी का 3 एक ही ऑप्शन में, अगर सिर्फ इतने से भी सॉल्व कर सकते थे तो हो जाता था। डी का 3, नालंदा इज इन बिहार। तक्षशिला का है? पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द पेयर। सेकेंड अर्बनाइजेशन खारावेला, गौतमीपुत्र, विक्रम देव चरिता। सेकेंड अर्बनाइजेशन आयरन, खराबेला ओडिशा। गौतमीपुत्र सातवाना, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सातवाना किंग। विक्रम देवाचरिता बिल्हान ने लिखा हुआ है। ओके, सो नाउ मैच 13 का है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। नागा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, श्रावणबेलागोला, तंत्रयाना, महेंद्रवर्मन शैली। सो नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट है, नागरा स्टाइल। श्रावणबेलागोला कर्नाटका में है। तंत्रयान बुद्धिज्म है और महेंद्रवर्मन नागरा स्टाइल। देन कर्नाटका में श्रावणबेलागोला पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे, महेंद्रवर्मन शैली। एंड तंत्रयान बुद्धिज्म। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ कालीबंगन, मिठाथल, अतरंजी खेरा, जखेरा। ये साइट्स है और ये जिन्होंने उन्हें एक्सकवेट किया है उनके नाम है। ओके, सो 15 का आंसर है। कालीबंगन किसने किया था? बीबी लाल ने। देन मिठाथल सूरज बान, अतरंजी खेरा बाय RC गौर एंड जखेरा बाय MDN शाही। ओके, सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sources it is stated that पृथ्वीराज III entertained the ambition of conquering the whole world? किस में दिया हुआ है about पृथ्वीराज ambition? ताज उल मसीर, ताज उल मसीर। इनके ऑथर का नाम लिख लीजिए। Who is the author of ताज उल मसीर? मसन मिर्जाई। मसन मिर्जाई is the author of ताज उल मसीर। ओके, ये इस बुक में दिया हुआ है about ambitions of पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज III। Who among the following, also we have read about Prithviraj Raso. Who was the author of it? Do let me know in the comments. Who among the following Delhi Sultans enlarged the Kuwait-ul Islam Mosque? Kuwait-ul Islam Mosque कहाँ पर है? It is in Qutub Minar. Okay, it was started by Aibak. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और उसको इनलाज किसने किया है? इल्तमिश एंड अलाउद्दीन खलजी। ओके, हु इनलाज हिम? इल्तमिश एंड अलाउद्दीन खलजी। 1 and 3, ऑप्शन बी, इन दोनों ने किया है। Who was the founder? Who started it? Aibak, Qutbuddin Aibak. Next question. Who among the following sultans of Delhi advocated the policy that follow the middle course in realizing the kharaj? Kharaj क्या है? एक तरह का टैक्स है, लैंड टैक्स है। And who was this? GST, घियासुद्दीन तुगलक। इन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी to in collecting the revenue, land tax. Next question.
Which of the following statements are not true about Sultan Ghiyasuddin Tughlaq? He befriended Sheikh Nizamuddin Aulia. He gave certain concessions to courts and muqaddams. He sent his son Ulugh Khan to recover arrears of tribute from Pratap Rudra. He levied a tax termed Haq-e-Sharb. तो इसमें से यहाँ पर क्या पूछा है? Not true. Okay. Which are the not true about Ghiyasuddin Tughlaq? He gave certain concessions to courts and मुकदम्स. ये करेक्ट है. अभी ऊपर हमने लैंड टैक्स के बारे में पढ़ा था. बाकी के जो स्टेटमेंट्स है जैसे कि ही befriended शेख निज़ामुद्दीन औलिया को उन्होंने दोस्त बनाया था. नो. एंड ही सेंट हिज सन उलुग खान टू रिकवर अरीर्स टू ट्रिब्यूट फ्रॉम प्रताप रुद्र. ये भी रॉन्ग है. ओके. सो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन. 2 तो है कट हो गया, इसीलिए हर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो हमारा तो 2 फाइनली वो कैंसिल है. तो इसीलिए हमने बाय दिस मेथड वी हैव मेड इट पॉसिबल टू फाइंड द आंसर. ऐसे एग्जाम में भी हमें अगर कुछ एक भी पता है तो भी ट्राई करना चाहिए. हु पुट फोर्थ द hypothesis ऑफ अर्बन रिवोल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द 13th and 14th century? अर्बन रिवोल्यूशन की थेरी बाय मोहम्मद हबीब. 13th-14th century में उन्होंने लाई थी भक्ति मूवमेंट के अराउंड. ओके. Next, the arrival of North Indian Sufis in Deccan during the 14th and 15th century brought deep changes in the region's political and religious fabric. They came to Deccan to justify Khalji and early Tughlaq invasions of the Deccan plateau. Okay, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर हमने देखा है कि जो सूफीज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1398 के अप्रॉक्स में जाने स्टार्ट कर दिए थे. उस टाइम पर खलजी और तुगलक का जो रूल था वो ख़त्म होने आ गया था. दैट्स वाई रूल को जस्टिफाई करने तो नहीं गए थे, बट येस डीप चेंजेस आए थे रीजन के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फैब्रिक में. अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, ये 1398 है. 1398 प्लीज़. एंड वन मोर थिंग, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया था अबाउट द क्रोनोलॉजी. वेयर इज द क्वेश्चन? येस. यहाँ पर पुलकेशिन 7th century के अप्रॉक्स है. शंकराचार्य आसाम में 8th century के अराउंड, एंड ये 13th-14th century के अराउंड है. 13-14 एंड ये तो BC में आते हैं 185-182 BC के अप्रॉक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ विजयनगर? विजयनगर का करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर हमें लिखना है. सबसे पहले आते हैं संगम, फिर आते हैं सलुआ, तुलुआ एंड अराविदु. ओके. This one, option B is the correct. Let me know in the comments who was Tulua king, very famous Tulua king. विजयनगर डायनेस्टी कब स्टार्ट होती है? 1356 में विद बुक्का ने स्टार्ट की थी, राइट? उनके साथ और कौन था? द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन, ये तो नींद में से उठाकर भी बोला चाहिए, इन 1510. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स: प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णवाइट भक्ति बाय रामानंद, कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ, क्लोज ऑफ इबादत खाना एंड फाउंडेशन ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन द डेक्कन. ओके, इन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. सबसे पहले तो फाउंडेशन ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन डेक्कन कब होता है? 1398. अभी हमने डेट देखी थी, राइट? 1398. देन प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णवाइट 15th century में होता है. 15th century. एंड देन कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ ये 1604 में. एंड वन मोर थिंग, इबादत खाना कब क्लोज होता है? 1575. सबसे पहले आता है प्रोपोगेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ चिश्ती 4, देन 1, देन 3 एंड देन 2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below 2 statements. Assertion. Akbar proclaimed Hisala in the 24th year of his reign. He decided to abolish all other existing methods of land revenue assessment in Mughal Empire. अकबर का 24th year of reign, मतलब उनके reign का 24th year, which will be approximately 1579. दहसाला कब आता है? 1579. अभी अकबर का तब आता है 24th year. A is correct. 1579 में दहसाला सिस्टम आता है एंड A is correct. ही उसके बाद में उन्होंने बाकी सारे मेथड्स बंद कर दिए थे, राइट? So it is correct option. Option is A. Next question. Again, chronology में arrange करना है. The Mughal conquest of Malwa, introduction of the Ilahi year, annexation of Kashmir in Mughal Empire, conquest of Orissa. ये अकबर के लाइफ इवेंट से रिलेटेड है. सबसे पहले तो मुगल conquest of Malwa 1561 यहाँ लिखते हैं. Then introduction of the Ilahi year कब आता है? Ilahi year is in 1584. Annexation of Kashmir 1585.
and then Orissa 1592. Okay, now the correct answer is C. Sorry, B. Okay, next question. Which of the following illustrated manuscripts were prepared during Akbar's time? अकबर के टाइम पर कौन से manuscripts that to illustrated मतलब जिसमें पिक्चर्स वगैरह थे? They were the तुतीनामा and योग वशिष्ठ. कौन से? ऑप्शन 3 and 4. तुतीनामा के ऑथर वेरी फेमस, बताओ. Who among the following foreign travelers describe the manufacture of indigo in India? इंडिगो का मैन्युफैक्चर किसने बताया था? विलियम फिंच. ये अकबर के टाइम पर आते हैं, जहांगीर के. 29. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट. अहमद यादगार, सुजन रे, ख्वाजा कामगार, गहरत खान, शाहनवाज खान एंड उनके बुक्स का नाम है. ओके, सो अहमद यादगार की बुक का नाम क्या है? 1 मिनट. तारिक सलातिन अफगानी. ख्वाजा कामगार सुजन रे का खुलसत उत त्वारिक. सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन इफ एनी. ख्वाजा कामगार गहरत खान, इनकी बुक का नाम है मसीर जहांगीरी एंड शाहनवाज खान मसीर उल उमारा. ओके, करेक्ट आंसर. ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2. ऑप्शन ए. 30. शाहू वॉज सेट फ्री फ्रॉम मुगल कैप्टिव बाय प्रिंस अजम. शाहू महाराज इन्हें औरंगजेब ने पकड़ा था एंड फिर उनके बेटे ने उन्हें रिहा किया था. ओके, 1689 से 1689 to 1707. Sorry. By which act of the British Parliament has abolished the monopoly of East India Company's trade in India? कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. जो बची हुई चाय और चाइना वाली पॉलिसी थी वो कब बंद हुई? 1833 में. ये 1813 वाले में ब्रिटिश मोनोपोली कंपनी की मोनोपोली एंड होती है. Arrange the following British legislations concerning women in chronological order. Hindu Widow Remarriage Act, Native Marriage Act, Abolition of Sati in Bengal Province, Age of Consent. सबसे लास्ट में एज ऑफ कंसेंट 1891. ये सारे उसके पहले दो ऑप्शन में लास्ट में 1891 4 है. उसके सबसे पहला वाला है हमारा अबॉलिशन ऑफ सती 1829 राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर. ओके, देन उसके पहले है 1856 में वो विडो रीमैरिज. उसके बाद में जो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक रीज़न ये भी था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट. नेक्स्ट इज हिंदू, ये भी 1856 बाद में आता है, नेटिव मैरिज एक्ट. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फेमाइन कमीशन फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. फेमाइन कमीशंस को अरेंज करना है. सबसे पहले आती है हमारी कैम्पबेल 1866. देन 1886 में आती है 1878 में आएगी हमारी स्ट्रैची. उसके बाद में आती है लाइलल 86 में. एंड देन मैकडोवेल कमीशन कब आती है? 1901. करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी. मौलाना शिबिल नोमानी बिलोंग टू द विच स्कूल? नदवत उल उलेमा स्कूल. ओके. गांधीजी's intervention in the Ahmedabad mill strike of 1917 led to the enhancement of wages by 35%. ये क्वेश्चन का 35% आंसर. 36. The chief grievance of the peasants in चंपारण सत्याग्रह क्या था उनका सबसे बड़ा रीज़न? 3 खाटिया सिस्टम इंडिगो के प्लांटेशन से रिलेटेड. 3 भाग में उन्हें इंडिगो प्लांट करना पड़ता था और एक भाग में रिक्वायर्ड क्रॉप. 37. In which session the Indian National Congress adopted the resolution on fundamental rights? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कराची सेशन में जो 1931 में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. 38. Who argued that de-industrialization did not take place in India under the colonial rule? किसने बोला था ये? मोरिस जी मोरिस. de-industrialization नहीं हुआ था ऐसा उन्होंने बोला, बट हाउएवर de-industrialization हुआ था. Who founded the Hindu College of Calcutta in 1817? डेविड हरे. ऑप्शन ए डेविड हरे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बुक्स एंड ऑथर्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान एंड सुभाष चंद्र बोस. इंडिया मीन्स फ्रीडम डी का 4. सर सैयद अहमद खान का दादा भाई नौरोजी की ये बुक है, काफ़ी फेमस. पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया फ्रेंच फ्रीडम
हाँ, द इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस एंड सर सैयद अहमद खान का सी, और अशबाश ए बगावत हिंद। ओके, ए का 1, ए का 4 किस में है? ए के ऑप्शन में है, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेम्स है लीडर्स के एंड उनके अपराइजिंग्स। चिन्नवा, हाजी शरीयतुल्लाह, अलूरी सीतारामन राजू, कृष्णादाजी पंडित, उनसे रिलेटेड है ये। सो सबसे पहले तो चिन्नवा किस रिवोल्ट से रिलेटेड है? कितूर रिवोल्ट, अपराइजिंग 1924। हाजी शरीयतुल्लाह फर्जी, ओके, ऑप्शन 2। अलूरी सीताराम राजू रंपा अपराइजिंग एंड गडकरी रिवोल्ट से कृष्णादाजी पंडित। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। पैरामाउंटेसी इज द पोजीशन ऑफ परमानेंट पावर इंजॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिलेशन टू प्रिंसली स्टेट्स। पैरामाउंटेसी किसे दी गई थी? प्रिंसली स्टेट्स को। द गवर्नमेंट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन मद्रास ड्यूरिंग 1937 to 39 was headed by सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आज के टाइम पर अगर ये पेपर आए तो कितना जल्दी हम क्वालिफाई कर लेंगे ना। अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ऑगस्ट ऑफर। ओके, सबसे पहले तो ऑगस्ट ऑफर आता है 1940, 8 अगस्त 1940 में ऑगस्ट ऑफर। देन आते हैं हमारे क्रिप्स मिशन, सॉरी इंडिविजुअल सत्याग्रह, अक्टूबर 1940। हम यहाँ पे डेट्स पे मंथ पे मेंशन करने पड़ेंगे बिकॉज ये है अगस्त 1940, इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, and then Quit India movement, it was in August 1942। ओके, इतने पास में है, कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज इट इज सॉल्वेबल। सिर्फ पता रहता था कि ऑगस्ट ऑफर सबसे पहले आया तो भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म? किसे बोला गया है फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म? पेट्रार्क। ऑप्शन डी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री अब आती नहीं है, पहले आती थी। द फी पेड टू द लॉर्ड फॉर द यूज ऑफ मिल्क, ब्रीवरी एंड बेकरी वॉज नोन एज, क्या बोला करते थे इसे? बेनालाइट। द थ्योरी ऑफ जनरल विल, किसकी थ्योरी है जनरल विल की? रूसो। बुलियनिज्म एंड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड विद द बेसिक फीचर्स ऑफ, सॉरी फॉर द ग्लिच, इसका आंसर ऑप्शन डी, मर्केंटलिज्म। ओके, नाउ लास्ट वन, मैच द पेयर्स है इरास्मस, मैकियावेली, थॉमस मोरे, डांटे, एंड ये ऑथर्स हैं, ये साइड में उनकी बुक्स है। डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया, द प्रिंस, प्रेस ऑफ फोली। सबसे पहले तो इरास्मस की बुक का नाम था यूटोपिया। मैकियावेली की बुक का नाम है द प्रिंस 1513 में। देन थॉमस मोर 1516 में उनकी बुक आई थी प्रेस ऑफ फोली। एंड डांटे की बुक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, ये काफ़ी फेमस है डिवाइन कॉमेडी। सो अब करेक्ट आंसर इज ए का 2, बी का 1। देयर इज समथिंग, ओके, हमें आंसर नहीं दिया गया है बराबर मैच द पेयर में। इरास्मस बी का 3 आना चाहिए, नॉट 2। थॉमस मोर, प्रेज ऑफ फोली, एंड डांटे, डिवाइन कॉमेडी। दैट्स इट, वी आर डन विद टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फॉर मोर updates and detail, do subscribe to the channel and press the bell icon. Also, if you are new, do share with your friends all. It will be very beneficial. Thank you for